So this is PHI. I think you are able to see this is PHI 103. On the first chapter, we are having 4 questions, and we can expect a long question. As for 5 mark or 10 mark or 15 mark, this is the first semester. As I am also new, we do not know, just expecting. So I have prepared the answer of these 4 questions. Let us discuss these all questions infrequently. So first question is about describe the role of Raja Ram Mohan Roy and his contribution towards modern political thoughts in India. So I think everybody have know about Raja Ram Mohan Roy, right? Yes, sir. So let us discuss through it. Raja Ram Mohan Roy is widely recognized as the father of modern India. So this is the first fundamental point we can write in the examination, that he used to be recognized as the father of modern India due to shaping some political thoughts in India. So he is one of the person who brought some contemporary changes in the Indian society. He contributes many things like in social and religious fabric. So in social rituals and in the matter of religions, he made many changes. Also, he got some revolutionary ideas that are related to political, that related to kind of institutions, and it became impactful to the Indian society. So let us go through the rules of the Raja Ram Mohan Roy. Here we can see he is a pioneer of liberal, rational, and humanitarian thought. So, what do you mean by liberal? Do you have any idea? Do you know any meaning of liberal? It is a Latin root word. Hana. Liber is a Latin root word which means free. Okay. So, liberalism means Hello. freedom. Yes. Hello, sir. It would have been better if you speak Odia because we are here in Odia all. ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଓପନ୍ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ ତ ଟିକେ ମାନେ ଯାହାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। Sure, sure, sure. So ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ଏବେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜ୍ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା, ସୋ ହ୍ୟାଭ୍ ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିକାଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥା ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା, ଆମ କଲଚରକୁ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସବୁରେ ତାଙ୍କେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେ ସବୁ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ମାନେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ମୋଷ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି କେମିତି ରେସନାଲ୍ ହେବ। ରେସନାଲ୍ ମାନେ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ଲୋ ରେଟ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ ମାନେ ମଣିଷତ୍ୱ। ଓକେ, ତ ହି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରାଇଟ୍ସ है ना। चैंपियन मीन्स मोस्टली फोकस्ड, से फोकस करते इंडिविजुअल राइट उपरे, फ्रीडम उपरे, आउ लोक मानकर स्लोली ट्रेडिशनल अब कल्चरल चेंजेस उपरे। सो इट क्लियरली लिखाई रॉय क्वेश्चनड ब्लाइंडली blind adherence to the tradition, advocated for the reason and critical thinking and promoted human dignity, है ना। तो रॉय सबुबले प्रश्न उठेइथिले का उपरे जो आमे ट्रेडिशन को अंध भाव में फॉलो करी चलवाटा,
सा उपर क्वेश्चन उठुले जेकोसी जिनस गोटे सोसाइटी लागू हम जेकोसी रूल हो जेकोसी बिलीफ हो ता उपरे से कारण पचारुले प्रश्न उठे कारण पचारुले से सब जिनस को चिंता करुले क्रिटिकाली माने एनालाइसिस करते गोटे जिनस को आउ सब बेले सोसाइटी रे लोक मानकर रेस्पेक्ट माना इंडिविजुअली टी केमिति रहिबो से ऊपर अधिक फोकस करुले आउ सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास को केमिति कौन से करिनी बदलई तो पारे हरिनी आके भूत करदेला है ना अंधविश्वास को कई भली से दूरेबे ए जिनस ऊपर मोस्टली से क्वेश्चन पचारुले माने चिंता करथिले आ ऊपर तार एग्जांपल देछि से आ गोटे जिनस ऊपर फोकस करथिले कोन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अर्लियर इन द ब्रिटिश रूल जतले ब्रिटिश माने हमकु शासन करथिले सेतले आमे हमर स्टेटमेंट किछि भी रखि पर नथिले वी डू नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक है ना राइट टू शेयर आवर थॉट्स ताकू कहा जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अबाउट इक्वालिटी ब्रिटिश समय तो इक्वालिटी नथिला ही नथिला एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू द कॉलोनाइल सिस्टम है ना माने ब्रिटिश मानकर जो रूल थिला से हिसाब रे जस्टिस चलथिला तो राजा राममोहन रॉय ए जिनस ऊपर बेसी फोकस करथिले एंड इंडियन नेशनलिस्ट मानकू केमिति इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हम ए सब जिनस को लेकिन मोस्टली से काम करथिले सो फर्स्ट पॉइंट समस्त बुझिला जदि एग्जाम रे आसे आमे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया गोटे पॉइंट मिली आमे लिखिपर आउ से क्वेश्चन उठाउथिले सुपरस्टिशन ऊपर सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास मन रख आउ ट्रेडिशन ऑफ ब्लाइंड एडहेरेंस माने जेकोसी जिनस कल्चर को ट्रेडिशन को अंध भाव में फॉलो करवाटा को प्रश्न उठाइथिले एति जिनस आमे ए जाए लिखिपर समस्त ये बुझा पड़ला कि ओके ओके नाउ सेकेंड पॉइंट सो राजा राममोहन रॉय दीटा समाज दीटा सभा और समाज माने द काइंड ऑफ सोसाइटी से गठन करथिले गोटर ना होची ब्रह्म समाज और नाम होची अमित्य समाज ए सॉरी आत्मीय सभा 1815 रे एस्टाब्लिश करथिले और ब्रह्म समाज 1828 रे एस्टाब्लिश करथिले ए दीटा एस्टाब्लिश करिया पछरे तांकर कारण होची कि से ए सब जिनस गुडा जोटा लिखाई एठी ए सब जिनस को चैलेंज करि परिबे ए सब जिनस रे चेंजेस आनी परिबे जेमिति कि आइडोलैट्री हैला केस्ट को नहीं कि जो जिनस रहला और सुपरस्टिशन आइडोलैट्री रो मीनिंग कोन के जानिछ कि आइडोलैट्री रो मीनिंग कोन नो सर आइडोलैट्री माने माने गोटे जिनसर एक्सट्रीम एडमिनिरेशन है ना माने लोक माने किछि वर्शिप ऑफ आइडल माने लोक माने सेतल मूर्ति को पूजा करथले है ना मूर्ति को पूजा करिबाटा प्रोसेस को आइडोलैट्री कहा जाए है ना आइडल एंड आट्री आइडल माने हमरो देवादेवी मानकर मूर्ति को आइडल कहा जाए ना गणेश मूर्ति हैला एमती जेकोसी भगवान देवादेवी मूर्ति तो आइडल आट्री माने मूर्ति मानकर पूजा को आइडोलैट्री कहा जाए एंड केस्ट रिगिडिटी माने टोटली केस्ट को लेकिन लोक माने जिस जो प्रकार डिस्क्रिमिनेशन होता से केस्ट रिगिडिटी कहा जाए आ सुपरस्टिशन माने तो मुझे अंधविश्वास ये सबू जाक को दूर करने राजा राममोहन रॉय आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज फाउंड करथिले and these institutions became platform for social and philosophical debate encourage a rational ethical and universally accessible spirituality तो सेमाने कहते अंध भाव में फॉलो करनी कि गोटे रिजन नियो सोसाइटी रे किसी एथिकल जिनस रख कि गोटे वैल्यू को नहीं कि पूजा करो है ना स्पिरिचुअलिटी को मानो बोली से एथिरे ये करछंदी आ विषय डिटेल रेडी देछि देखंतु फॉट फॉर एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती है ना आग काल रे कौन होता माने जो विडो थिले विडो को सती कह जाउथला विडो को कौन कर जाउथला जळे दिया जाउथला तांकर हस्बैंड जेबे मरि जाउथले हस्बैंड सहित विडो को निया रे जळे दिया जाउथला
ताकू प्रैक्टिस ऑफ सती कह जाउतला तार एबोलिशन पई से ब्राह्म समाज हेल्प रे ब्रिटिश रो गवर्नर जनरल मनकर साहाय्य रे इटा हमर सोसाइटी रे बैन करिसंदी एंड कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज सेतबेले चाइल्ड मैरिज भी होतला चाइल्ड मैरिज को बंद करिया पई मध्ये से कैंपेन करथिले आउ विडो रीमैरिज प्रस्तावटा से ही रखिथिले आ संगे संगे से कौन करथिले प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन वुमेन मानकर प्रॉपर्टी को मध्य तांकर अधिकार दिया जाऊ इतिपई मध्य राजा राममोहन रॉय लड़िथिले मु आ गोटे जिनस भी आपको पीडीएफ एटी देखेउछि हला एठी आपण एनसीईआरटी बुक्स क्लिक करेंगे मु ना आपको ए पीडीएफटा शेयर करदेवी है ना क्लास 8 रे राजा राममोहन रॉयकर एबोलिशन ऑफ सती प्रथाटा है ना एटी जी क्लास 8 रो सोशल साइंस एबे नाही बुकटा वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म रो होची बुक रो नेम मु एठी बाहर करके आपको ग्रुप रे शेयर कर देबे वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म एटा विजिबल होची कि नहीं सर होनी खाली क्वेश्चन अच्छी चारटा आ किछि नहीं क्वेश्चन चार्ट विजिबल होची कि अच्छा आगे अच्छा ताले मु शेयर करनी है वेट शेयर करिया क्वेश्चन चार्ट ही अछि बाडू छे केची दोने केची दे थांते बाडू छे तू जो दुष्ट होछ ना तो छेची दिया କଥା बाडू छी की ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଟ୍ ମାରି ଏବେ विजिबल होची कि हां सर आसेला सो एठी देखि परिबा एठी हमर राजा राममोहन विषय रे एठी पूरा क्लियरली मेंशन अछि ए पिक्चर देखंतु एठी क्लियरली सती पेंट ହେଇଛି है ना 1830 रो काइंड ऑफ पेंटिंग दिस इज बर्निंग ऑफ फ्यूनेरल माने चिता जळा जाउची ए फ्यूनेरल रे जतबेले हस्बैंड को जतबेले जळा जाउची एठी देखिबे तांको वाइफ को माने निया रे जबरदस्ती माने तांको पकई दिया जाउची सो ये क्लीयरली डिटेल अच्छी मुझे आपको शेयर करदेवी स्टिल पढ़ी भी शुणी दूसरी कोड अच्छे राजा राममोहन रॉय के विषय सो 200 years ago things were very different most children were married off on an early age both Hindu and Muslim men could marry more than one wife in some part of the country widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral fire of their husband आग काल सोसाइटी रे ए प्रकार ट्रेडिशन थिला जते बेले गोटे विडो जदि सी चूज करुला डेथ तांकु को प्रेज करा जाउथला ओके वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंग और अदरवाइज वेर कॉल्ड सती तांकर इच्छा थाउ न थाउ जदि तांके नियारे माने तांकर हस्बैंड मरि जायछन तांकु जी नियारे जळी पड़थिला तांकु सती कहा जाउथला आउ वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेर रेस्ट्रिक्टेड से समय एटा थिला सो देन पॉइंट होची राजा राममोहन रॉय के विषय रे एटा देखंतु सेकंड पैराग्राफ एटा देखंतु द इंडियन रिफॉर्मर वन सच रिफॉर्मर वाज राजा राममोहन रॉय है ना 1772 रे तांकर जन्म 1833 he founded a reform association known as the Brahma Samaj later known as Brahmo Samaj in Calcutta people such as Rammohn Roy described as reformer because they felt that changes were necessary in society and injustice practices needed to be done away with so they thought that the best way to ensure such changes was persuading people to give up old practices and adopt new way of life तो मेनली ये पैराग्राफ देखेबार कारण होची राजा राममोहन रॉय ब्रह्म समाज फाइंड करथिले आउ ऊपर जो मेंशनड लाइक प्रॉपर्टी राइट टू वुमेन वे रेस्ट्रिक्टेड वुमेन्स मानकु प्रॉपर्टी राइट नथिला तांकु को हस्बैंड मला परे
ଫରେନାଲ ଫାୟାରରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡେଥ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଉଥିଲା। ସୋ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମର ମାନେ ରାଜା ରାମମୋହନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଜଣେ ରିଫର୍ମର ଯିଏ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତାକୁ ରିଫର୍ମର କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ ଆମକୁ ବାକି ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ପିକ୍ଚର, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହେଲା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟଙ୍କ ପିକ୍ଚର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ପଢ଼ିବା, ଆମ ଟପିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ସରି ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି। ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ, ଓନ୍ଲି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିଲା। ଦେଖାଯାଉଛି କି ସ୍କ୍ରିନ୍? ना सर देखो ब्लैक ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। देखो। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖାଗଲା ସାର୍, ଏବେ ଦେଖାଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା। ଓକେ, ଆପଣ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ କହିକି। ସୋ ନା, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିନଥିଲେ ତ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସୋ ଏଇଟା ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲି। ଦେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ପିଓନର, କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଏବୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସତୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍। ମୁଁ ସେ PDF ବି ପଠାଇଦେବି, ସେଠି ଆପଣ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସେ ଏସବୁ ରିଫର୍ମ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜକୁ ବି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଉ ରେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ 1817, ଦେନ୍ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ 1822 ଆଉ ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ 1826। ଏସବୁ ଯାକ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନଲେଜକୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା, ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନଲେଜ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଲେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ବେଦିକ ହେଲା, ବେଦିକ ନଲେଜକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଲେଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏ ସବୁ ଯାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ, ଦେନ୍ ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ବିଲିଭିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ କି ଫର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ସେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସର୍ଟକଟଲି ଦିଆଯାଇଛି, ବାକି ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିପାରିବା। ନାଉ ପଲିଟିକାଲ ଭିଜन ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? है ना, सिविल राइट्स उपरे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंट्स उपरे, ये सब आसला आइडिया कोठू, है ना। तो एठी हमें पढ़थिले राजा राममोहन रॉयଙ୍କର जन्म केबे हिची? टेक्स्ट बुक रे पढ़थिले। ଆପଣ फ्रेंच रिवोल्यूशन विषय शुणी कि? नॉर्मली हिस्ट्री ग्रेजुएशन रे से कोर्सटा अच्छे। फ्रेंच रिवोल्यूशन विषय शुणी कि? ଶୁଣିଥିଲୁ ବଟ୍ ମନେ ପଡୁନି ସାର୍ ଆଉ। ओके,
तो फ्रेंच रिवोल्यूशन गोटे चैप्टर जोटा कि तार सोसाइटी डिवीजन एंड लुइस 16 से राजा थिले ड्यू टू सम सब्सटेंस क्राइसिस माने खाद्यर अभाव है जाफल लोक मैंने रागिकी से देश में रिवोल्यूशन आनी एंड सेठू बहुत गुड़े आइडिया आमर राजा राममोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान फॉलो करते से चैप्टरटा तो ये सर्टकट एक्सप्लेन करहबनी कहीं से चैप्टर बहुत किसी जिनस अच्छी जमीक आज आमर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रे आमर 3टा ऑर्गन अच्छी गवर्नमेंट रो जोटा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी से आइडिया भी फ्रेंच रो जो फिलोसोफर माने जो कही तांकुठू ये आइडिया आसिक आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एस्टाब्लिश होइछि सो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुड़ा देशरू बहुत गुड़ा आइडिया कलेक्ट करिकी आमर कॉन्स्टिट्यूशन बनी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सो राजा राममोहन भी ये जो रिफॉर्म होइछि कल्चरल रिफॉर्म है ट्रेडिशनल रिफॉर्म है ए नेशनलिज्म है ये सबू आनी आमर फ्रेंच रिवोल्यूशन रू है ना एंड बुक रे क्लीयरली मेंशन होइछि कि से आइडिया एटू फॉलो कर तो मुझे आपको देखे भी दूचे से टेक्स्ट ए पॉइंट भी आम लिखिपर डाउनलोड विजिबल होची एटा होची हाँ सर द फ्रांस रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन चैप्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर रे हमें क्लियरली एठी मेंशन अछि मु देखे दोची टेक्स्ट देखो एठी क्लियरली देखिपारे टीपू सुल्तान एंड राजा टीपू सुल्तान एंड राममोहन रॉय आर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैव रेस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस है तो से आइडिया को फॉलो करते इवेन मैं आपको देखीदेवी जुडिशियरी एजुकेशन और सिस्टम से सबू फ्रेंच फिलोसोफर मानू ये आइडिया माने फ्रेंच रिवोल्यूशन रे बहुत किसी आइडिया अच्छे अबाउट लिबर्टी भी अच्छी फ्रीडम को लेकिन अच्छी आग जमाना स्लेवेरी भी थिला स्लेवेरी एबोलिशन को भी नहीं अच्छी हाँ ये देखो मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू होचंदी जड़े फिलोसोफर जीए प्रपोज करथिले डिवीजन ऑफ पावर विथ इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सीए रिप्रेजेंट करथिले गवर्नमेंट रो पावर को 3टा ऑर्गन्स रे डिवाइड करा जाऊ एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन होता हमर 1789 है ना 1789 रे फ्रेंच रिवोल्यूशन होता एंड राजा राममोहन रॉय जन्म होची 1777 आई थिंक है ना टिके है ना सॉरी 1772 राजा राममोहन जन्म हो 1772 एंड सी पढ़ा समय जो आइडियाज आसला 1789 रे फ्रेंच रिवोल्यूशन है एंड तांकर जो नेशनल असेंबली फॉर्म है फ्रेंच रिवोल्यूशन आफ्टर द बर्बन डायनेस्टी से ए आइडिया गुड़ी को फॉलो करथिले ओके ये बुझा पड़ा सो पॉलिटिकल विजन एंड अर्ली नेशनलिज्म
where sought civil rights and political representation for Indians under British rule है ना. सो ब्रिटिश रूल समय से तांकर लोक मानक सिविल माने आमर इंडियन पब्लिक लोक मानक केमिति राइट्स मिल पारिबो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन केमिति करिवे ता ऊपर तांकर विजन थिला. एंड पिटिशन फॉर इक्वल ट्रीटमेंट द इंडियनाइजेशन of the administrative services and judicial equality है ना, including trial by jury. jury माने तो जानी थे आग काल रे कोर्ट रे jury system थिला जोटा कि 5 to 8 members used to be seat in the court. सेमान को jury members कहा जाउतला. सेमान को majority decision रे गोटे माने केस रो डिसीजन निया जाउतला. सो ब्रिटिश माने ही आमर कोर्ट्स एस्टाब्लिश करछंदी इंडिया रे. सो एठी राजा राममोहन रॉयंकर रूल होची कि से लोक मानकर इक्वल ट्रीटमेंट पाई लड़ी थिले. आउ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेस जेमिति कि क्लर्क पोस्ट हला कि वकील पोस्ट हला कि ऑफिशियल पोस्ट हला से सब इंडियन पीपल को अधिक दिया जाऊ बोली से सेति पाई भी पिटिशन पिटिशन मान तो जानछंदी जो हम कोर्ट रे जो गोटे पर्टिकुलर जिनस को लेकिन केस फाइल करवाटा. ओके नेक्स्ट asserted the importance of freedom of the press as mechanism for public accountability है ना. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस पाई मध्य से अधिक इम्पोर्टान्स देइथिले. सेते बेले ब्रिटिश रो रूल रे फ्रीडम ऑफ प्रेस नथिला माने किछि भी प्रेस माने प्रिंट करके पब्लिश करि परिबनी. तो से जिनस पाई भी से लड़िथिले. आ दीटा न्यूज़पेपर को से फंडिंग करथिले. फंडिंग फाउंडिंग माने काइंड ऑफ से एस्टाब्लिशमेंट करवा से निजे बाहर करथिले कोन संवादक कुमुदी एंड मिरात उल अकबर है ना. सो मिरात उल अकबर होचीटा मुस्लिम न्यूज़पेपर देन संवाद कुमुदी होची हमर हिंदू न्यूज़पेपर. Okay, now religious universalism and interfaith dialogue. एठी से रिलीजन ऊपर फॉलो करथिले कोन ना सिकिंग कॉमन मोरल ग्राउंड्स है ना. जे कोनोसी लैंग्वेज यदि हिंदुइज्म हो क्रिश्चियनिटी हो इस्लाम हो जे कोनोसी धर्म हो समस्त को कॉमन मोरल ग्राउंड रे ट्रीटमेंट करा जाओ बोली तांकर एटा विजन. एंड मोनोथिज्म मोनोथिज्म माने कोन so the doctrine or belief that there is only one god सेटा को मोनोथिज्म कहा जाए है ना. मोनोथिज्म द डॉक्ट्रिन और बिलीफ ऑफ देयर इज ओनली वन गॉड है. तो सेटा को मोनोथिज्म कहा जाउतला. एंड रिजेक्टेड आइडल वर्शिप है ना. मूर्ति को पूजा करिवारे से अगेंस्ट थिले. तो मूर्ति पूजा छाड़ बोली कहते. एंड सॉट रिलीजियस मॉडर्नाइजेशन एंड प्री कंडीशन फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्रेस. तो से चाहूले देयर शुड बी वन गॉड है ना. समस्त को मोरल ग्राउंड रे ट्रीटमेंट इक्वली करा जाऊ और आइडल वर्शिप अगेंस्ट माने आइडल वर्शिप न करा जाऊ. ओके एंड थ्रू टेक्स्ट लाइक precepts of Jesus and truthful hui madin means raw encouraged rational ethical inquiry and comprehensive studies of faith. आ विषय अपन अधिक सर्च करी पढ़ी पारिबे है ना. तो एतिक जिनस हमकु ए रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म रु दरकार. ए टॉपिक रे हम एतिक एक्सप्लेन करी लिखि परिबा. नाउ वुमेन्स मनकर राइट ऊपर से कोन कोन अधिक फोकस करथिले. वी कैन से दैट एबोलिशन ऑफ सती हम ऑलरेडी पढ़ देले. सपोर्टिंग ऑफ विडो रीमैरिज है ना. माने विधवा मानकर पुणी विवाह पाई से आग काल विधवा मानकर रीमैरिज नथिला. तो राजा राममोहन विथ द सपोर्ट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन करथिले विडो रीमैरिज करथिले. एंड ऑल्सो प्रमोटिंग फीमेल एजुकेशन है ना. एंड क्रिटिकली पॉलीगामी चाइल्ड मैरिज
चाइल्ड मैरिज अगेंस्ट से बहुत किसी जिनस अवेयरनेस स्प्रेड करते एंड डेनाइल ऑफ प्रॉपर्टी राइट टू वुमेन वुमेन मानू प्रॉपर्टी देवारे लोक मना करते ताऊपर भी से ये करते तो वुमेन्स मानकर एतिकी राइट पाई से मोस्टली रिफॉर्म आनी ओके नाउ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लिबरल एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ये जस्ट खाली किसी ना ये आम एंशिएंट इंडिया एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऊपर देखा रॉय क्रेडिटेड विथ हार्मोनिंग इंडियन स्पिरिचुअलिटी से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को क्यों भली प्रमोट करते ताऊपर ये लिखाई है ना ना आम जो सातटा जिनस पढ़ले तार ये क्लीयर लिखाई अबाउट सोशल रिफॉर्म्स से सोसाइटी रे कौन कौन रिफॉर्म आनी रिलीजियस थ्रॉट थ्रो को इंस्टीट्यूशन रु स्प्रेड करते देन एजुकेशन को जिनस फोकस करते देन तांकर पॉलिटिकल थॉट्स को जिनस स्पेसिफिकेशन थिला माने इट इज जस्ट अ समराइजिंग टेबल माने चैप्टर पढ़ला जमती ए क्वेश्चन पढ़ला तार रिविजन से काइंड ऑफ थिंग्स ये अच्छी आपण मैंने टिके रिवाइज आउ थे करने सरला क्वेश्चन नंबर 1 रो आकार डाउट अच्छी कि क्वेश्चन नंबर 1 रो आकार डाउट अच्छी कि देखो टे पढ़ु कौन डाउट थी मत पचारे आपण मैंने जहाँ कहले भी शुणा कथा आप कौन डिस्कवर कर कहूँ ये सब लिंक अच्छी ये सब लिंक रे क्लिक करके आपण एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल राजा राममोहन रॉय विषय पाई परिबे जमिति कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज देखो से लास्ट लिंक रे क्लिक कली लास्ट लिंक रे क्लिक करियारो ये आर्टिकलटा आसला ये आर्टिकल आपण पढ़ी परिबे जब सेकंड क्वेश्चन ना आज पाइती थियो सेकंड टा डिस्कशन कर देन सर राजी देखो सेकंड क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती वाज ए प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी हिंदू रिफॉर्मर से गोटे हिंदू रिफॉर्मर हिंदू रिलीजन रे बिलीव करिया वाला हिंदू रिलीजन रे हिंदू सोसाइटी रे बहुत गुड़ाए चेंजेस आनी whose social reforms address many prevailing social evils in Indian society माने इंडियन सोसाइटी जो भाया माने हिंदू रिलीजन को लेकिन जो भाया अंधविश्वास थिला अंधविश्वास तो कोई पारे सोशल एक्टिविटीज है ना ताकू अपोज करिवार थिले तो से सब क्लियर मेंशन देखो अपोजिशन टू कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी तो स्वामी दयानंद सरस्वती कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन रो अगेंस्ट थिले अनटचेबिलिटी माने जो ड्यू टू दलित्स एंड सम सोशली बैकग्राउंड क्लासेस छुआ भेदभाव तारे से माने सिस्टम अगेंस्ट थिले so he strongly criticized the caste system and untouchability social माने ए caste system आउ छुआ छुआर टोटली अगेंस्ट थिले advocating for social equality and the upliftment of oppressed classes माने जो माने अत्याचार करथुले से माने होची ऊपर लेवल हायर क्लासेस है ना तो
सोशल इक्वालिटी आनिबारे आउ अप्रेस्ड क्लासेस मानकर डेवलपमेंट विषय माने सेमानकर जो थिंकिंग अच्छी काइंड ऑफ जिनस को से अधिक फोकस करते कि एसबू जिन सोसाइटी रे न हो ओके सो आम कौन लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती इज एन हिंदू रिफॉर्मर फ्रॉम 19th century. He was opposing to caste discrimination and untouchability. How he opened Vedic studies and education to all castes. So ये हूँ important point आपको explain करिया में लिखि परिबा ये Vedic studies इंडिया ओपन करथिले और सब caste को education पे बिलीव रखुथिले. Next, women's right and education. Dayanand Saraswati supported women's education, opposed the subjugation of women. है ना माने subjugation माने कौन फॉर एग्जांपल subjugation माने गोटे पावर अन्य पावर उपरे रूल करने को subjugation कहा जाउछे जेमिति कि ब्रिटिश है ना subjugated over India in the matter of political, economical, culture से सब को नहीं कि से रूल करथिले तांकर पावर टोटली इंडियन कल्चर उपरे थिला सेमिति हमर इंडियन सोसाइटी रे वुमेन्स मानक ऊपर रूल करा जाउथिला वुमेन्स को रूल करबा पई कोनोसी से समय रे बिलीफ नथिला ओके एंड स्वामी दयानंद सरस्वती कौन करथिले ए जिनस को अपोज करथिले एंड फॉट फॉर विडो रीमैरेज राममोहन रॉय को और मिशन रे ए भी शामिल थिले विडो रीमैरेज करा जाऊ एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज तो आमको राममोहन एंड दयानंद ए दी जनर गोटे कॉमन पॉइंट मिल जाए आम एटा लिखिपर विडो रीमैरेज एंड चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड एबोलिशन ऑफ सती है ना सतीदाह प्रथा अगेंस्ट थिले. He also established schools and gurukuls where girls and boys were taught together and providing free education and resource. से समय ब्रिटिश जमाना रे फ्री एजुकेशन है ना समस्त गर्ल्स एंड बॉयज गोटे जगह पढ़े स्कूल्स एंड गुरुकुल्स से एस्टाब्लिश करथिले. नाउ एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स कौन कौन करथिले से सोशल माल प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिज सती से सब जिन रिपीट है ना एटा रिपीटेड पॉइंट. ही एक्टिवली वर्कड टुगेदर टू द मैरिज सॉरी आर्य समाज है ना तो राजा राममोहन रॉय को समाज प्रति को जिनस एस्टाब्लिश करथिले को इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश करथिले गोटे हूँ ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज आर्य समाज आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती तांकर ब्रह्म आत्म समाज हाँ आत्म देख आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज आपण आत्मीय सभाटा लिखते लिखले लिखते ना ना ब्रह्म समाज हूँ गोटे इम्पोर्टाट इन्स्टिट्यूशन तांकर एंड लाइक आमे दयानंद सरस्वती मन रखा आर्य समाज दयानंद सरस्वती आमर आर्य समाज एस्टाब्लिश करथिले जो थिरे कि ए सब जिनस माने एबोलिशन ऑफ सती एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरेज ए सब जिनस को प्रोत्साहन पाई से आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले. नाउ he laid great emphasis on compulsory universal education for all, establishing दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल्स जोड़ा कि आम आज डीएवी स्कूल भाव में जानूचे जो डीएवी स्कूल रो फुल फॉर्म जोड़ा हूँ दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेजेस एटार एस्टाब्लिशमेंट आउ एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल माने समस्त एजुकेशन ये रो आर प्रतिष्ठाता होती स्वामी दयानंद सरस्वती. Okay. Now campaign against superstition. Superstition मान अंधविश्वास and blind ritualism है ना अंध भाव में किसी गोटे रिचुअल को फॉलो करवा ए सब अगेंस्ट से कैंपेन करथिले माने लोगों को मध्य रे अवेयरनेस स्प्रेड करिया पई से कैंपेन करथिले. सो आइडल वर्शिप आंके भी मूर्ति पूजार अगेंस्ट थिले है ना आ वैदिकल प्रिंसिपल्स आमर वेद मानकर जो प्रिंसिपल थिला ताकू फॉलो करथिले एंड बेस्ड ऑन रीजन एंड सोशल जस्टिस
तापर थियोर अछि okay. And now social upliftment through Arya Samaj. Arya Samaj was founded in 1875. He promoted social service, equality and eradication of social evils, aiming to unify and morally upliftment of Indian society. तो आर्य समाज थ्रू से सोशल सर्विस समाज सेवा आउ इक्वालिटी आनिया पई आउ जो कौन सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग टू द रिचुअल्स ये सब जिनस को से अधिक फोकस करते सो मोस्टली बहुत गुड़ा जिनस कॉमन अच्छी बस आमको समाज मन रखिकी लॉन्ग आंसर को एक्सप्लेन कर लिखिपर समस्त बुझा पड़ा क्वेश्चन नंबर 2 हाँ सर बुझा पड़ला सर आमे ओडिया लिखिबा ना इंग्लिश रे देखो आपन जो कंफर्टेबल जदि ओडिया रे क्वेश्चन आछे ताल ओडिया आंसर लिखि परिबो अच्छा बुक तो सब इंग्लिश रे दैछन ना बुक सब इंग्लिश रे दैछन एज ए पीजी हमर इंडिया रे मोस्टली इंग्लिश इंग्लिश को फॉलो कराउची तो एक्सपेरिमेंट ही करियो पड़ियो आपण लिखंतु फर्स्ट सेमेस्टर रे जदि मार्क आसुची भलो ताल ओडिया रे कंटिन्यू करि चलिबे जदि मार्क आसुनी ताहले हमको इंग्लिश रे ही लिखिबो पड़ियो नेक्स्ट सेमेस्टर रो इंग्लिश रे टिके भलो मार्क मिलिबो मे बी हां इंग्लिश रे तो मार्क मिले सर आपण एतियो टाइम हमहु दोचन ना बहुत हेल्पफुल हबो मोर भी तो एतियो दिन एग्जाम अच्छी ना काढी मोर भी तो 31 जाए एग्जाम तो ऐसा जिनस पर मते फोकस करियर अछि आ स्वामी विवेकानंद विषय सब तो जानिथिबे टे क्लियरली पॉइंट जाक अछि टिके पढि दियंतु काली की डिस्कस करनेबा काली की गुडे एक्सप्लेन करंतु सचिन भाई ସାର୍ ମୋର ଆପଣ ଭଳିଆ ସାର୍ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର ନାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ନା କାଳେ ହବ ନହବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଇଁ ହିଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ପଢେଇଲେ ବୁଝା ପଡେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝି ସାର୍ ହଉଛି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଟା କିଛି ଏତିକି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶର କିଛି ଏତିକି ମିନିଂ ଅଛି ସେଗୁଡା ବି ଆମକୁ ଆଜି ଆଜି ଜଣା ତ ନାହିଁ 6 ଆମେ ତାରିଖ କିଛି ହେଲା ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି ଆଜି 6 ତାରିଖ ହେଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ 12-13 ତାରିଖ ଯାଇ 103ଟା ସରେଇଦେବା ହେଲା ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଟିକେ ଅଛି। ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ହଉ ଏକ୍ଜାମ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାର୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନିଜେ ସର୍ଟକଟଲି ଷ୍ଟଡି ବୁଝିଦେବେ ଟିକେ କରିବାଟା ଡିସକସନ କରିଲେ ନା ଭଲସେ ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନାଇଁ ସାର୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସର୍ଟକଟଲି ପୁରା ବୁଝି ବୁଝିଯିବା ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ସାର୍ କ୍ଲାସ ରେ ବହୁତ ବୋର ଲାଗୁଛି କିଛି ବୁଝା ହିଁ ଯାଉନି ସାର୍ କଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ PDF ନାହିଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ନାଇଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସତରେ ରେକର୍ଡ଼ ଏବେ କରୁଛି କୋଚିଂ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେବି ଯାହାକୁ ପରେ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ ଇଜି ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ସର୍ଟକଟଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହଁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 4-5 ମିନିଟ୍ ହଁ ଓକେ ହଁ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏର୍ଲି ଲାଇଫ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ବର୍ନ ଏଜ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତା ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଯେଉଁଟାକି 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 12 ଜାନୁଆରୀ ଏଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ୟୁଥ୍ ଡେ ହଁ ସୋ ଟୁ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟେଡ୍ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲା ତ 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ହେଲା ତାପରେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯାକୁ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କନସର୍ନ କରି କହିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ଅପ୍ ଟୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 4 ଓନ୍ଲି ପଢ଼ିପାରିଛି ସମୟ ଟିକେ ହେଲାନି ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଲେଡ୍ ହି ମିଟ୍ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଲା ସୋ ସେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ
କ'ଣ ତାଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ବିଙ୍ଗ ପାଥ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ଗୋଲ୍। ସବୁ ଯାକର ସବୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରାମକୃଷ୍ଣ ନା ତମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।